الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے یوں تو زندگی کے ہر لیل و نہار کو، دن اور رات کو، صبح اور شام کو انتہائی قیمتی بنایا ہے، لیکن اپنی بعض حکمتوں سے اور اپنی بعض مصلحتوں سے سال کے کچھ ایام اور کچھ مہینے، پھر ان کچھ مہینوں میں کچھ ایام اور اس میں کوئی خاص وقت، وہ بہت زیادہ بسا اوقات خصوصیت کا حامل ہوتا ہے، اور سعادت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جو اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ وقت تو گزر جاتا ہے، فائدہ اٹھانے والے اٹھا لیتے ہیں، محروم رہنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سال میں کچھ ایام، کچھ دن، کچھ راتیں ایسی مخصوص فرمائی ہیں کہ ان خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمتوں کا اور برکتوں کا اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک رات اب آنے والی ہے، تقریباً 2 دن کے بعد شب برات، اتوار کے دن رات کو شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس سے متعلق چند ضروری باتیں آج عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ جب ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پہنچیں گے تو یہ 15 شعبان گزر چکا ہوگا۔ تو اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائے۔ سب سے پہلے تو اس روایت کو سامنے رکھنا چاہیے جس روایت سے اس رات کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک رات
جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی تو یہ رات 15ویں شعبان کی تھی جسے شب برات کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، غائب ہے. مجھے خیال ہوا کہ آپ باری چونکہ میری ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے گھر پر ہوں، کسی بیوی کے ہاں ہوں آپ موجود ہو، باری میری ہے. تو کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور میں اٹھ کر باری باری میرے دیگر ازواج مطہرات ہیں ان کے گھروں میں نے حضور کو دیکھا، وہاں پر آپ موجود نہیں تھے. تو میں چلتے چلاتے جنت البقیع پہنچ گئی. دیکھا وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی مغفرت کی دعا میں مصروف ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس پیغمبر کا حال یہ ہو کہ اس نے کسی لمحے اپنی امت کو فراموش نہ کیا ہو، وہ آج امت نبی کا کیا حق ادا کر رہی ہے. کسی موقع پر اپنی امت کو آپ نہیں بھولے، کسی موقع پر آپ نے اپنی امت کے لیے دعا نہ کی ہو. کوئی ایک موقع آپ ایسا تاریخ میں نہیں دکھا سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. تو آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول باری آپ کی میرے ہاں تھی، مجھے یہ شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور کے ہاں تشریف لے گئے. تو میں تلاش کرتے 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 میں یہاں تک پہنچ گئی، دیکھا کہ آپ یہاں پر مصروف ہیں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو یہ رات کیا ہے؟ یہ کون سی رات ہے؟ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے اس رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ یہ وہ رات ہے، خاص رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت اتنی کثیر تعداد میں فرماتے ہیں جتنی کثیر تعداد میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں. قبیلے بنو کلب عرب میں یہ ایک بہت مشہور قبیلہ تھا جو مویشی بہت زیادہ پالتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو ہر گھروں میں یہ جانور ہوا کرتے تھے. ان کی معیشت کا اور ان کے معاش کا اور روزگار کا کہ یہی ساری چیزیں تھیں. تو یہ جو عرب میں قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو کلب کے نام سے جو مشہور تھا، یہ بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی امت کے ایسے لوگوں پر جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کی اتنی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں جتنی کثیر تعداد میں ان بکریوں کے جسموں پر بال ہیں. ایک بکری کے بال آپ گن سکتے ہیں؟ حساب لگا لیں. آج تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے. حساب لگا لیں ذرا سا، سارے حساب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، کوئی آدمی بھی نہیں گن سکتا. تو مقصود حضرات محدثین نے اس روایت کو ذکر کر کر یہ بات بیان فرمائی کہ یہاں پر بھی مقصود قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے بال کی تعداد بیان کرنا نہیں ہے، وہ بالوں کی تعداد بیان کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کثرت مغفرت کو بیان کرنا، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور پھر جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ایسا بظاہر لگتا ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے سے پہلے یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ اس کا مقدمہ ہے، یہ اس کی تمہید ہے، یہ اس کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے.
تو اللہ تعالیٰ تو رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. یہاں پر چونکہ ہمارا جو ایک قومی جو مزاج ہے اس مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہمارے مزاجوں میں ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، یا تو افراط ہے یا تفریط ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے شب برات کی اتنی اہمیت بیان کی، اس سے اگلے دن کے روزے کی اتنی اہمیت بیان کی، قبرستان میں جانے کے مسئلے کو ان دونوں باتوں کا میں آگے پر میں انشاءاللہ بات کروں گا. ان دونوں باتوں کو اتنا شد و مت کے ساتھ بیان کیا، اس رات کی اتنی فضیلت بیان کی کہ اس کو شب قدر کی فضیلت سے کہیں زیادہ آگے جا کر پہنچا دیا. اور جب بعض لوگوں نے انکار کیا تو انکار کر کے اس کو اس درجے پہنچا دیا گویا کہ ان کی بات سے جو مترشح ہوتا ہے اور ان کی باتوں سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگنا واگنا سب فضول ہے. یہ دو انتہائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ایک انتہا یہ ہے اور ایک انتہا یہ ہے. نہ یہ درست ان دونوں کا درمیانی جو راستہ ہے جس کی شریعت نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، جس سے احادیث بھری پڑی ہے، اس کا خلاصہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہلی بات کہ جن لوگوں نے اس رات کی فضیلت، اس رات میں جا کر عبادت کرنے کا اجر اور ثواب شب قدر سے بڑھا دیا، وہ بھی غلط ہے. اور اس کے غلط ہونے کی وجہ بہت بدیہی ہے، بہت واضح ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ تو منصوص ہے. وہ تو قرآن کریم کی پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی ہے. اس کی فضیلت منصوص ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے. اور شب برات کی اس قدر فضیلت نہیں کہ جس قدر شب قدر کی فضیلت. دوسری بات کہ جن لوگوں نے اس میں جاگنے کو یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے اور اس میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ سب بیکار کی باتیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور علماء کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام ائمہ سلف اور خلف کا یہ معمول رہا کہ وہ اس رات کو حتی المقدور جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے. البتہ اور بعض چیزوں کی نشاندہی ہونی چاہیے جو ہمارے رواج میں اور ہمارے معاشرے میں رائج پا گئی ہیں. ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے. ان چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر اگر عبادت کرتا ہے تو بہت باعث فضیلت، بہت باعث برکت. اس کی فضیلت اور اہمیت رفاجت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس رات کو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے، اور بھی کئی سارے حضرات صحابہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اس رات کو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کے الفاظ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. کیا دعا کرتے تھے؟ سارے فیصلے تقدیر میں پہلے سے اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ کون سعید ہے اور کون شقی ہے، کون نیک بخت ہے کون بدبخت ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں. کون کس کو کتنی عمر ملے گی، وہ اس عمر کو کیسے گزارے گا، وہ نیک لوگوں میں ہوگا یا بد لوگوں میں ہوگا، اس کو رزق کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا. یہ سارے کے سارے تقوینی فیصلے پہلے سے طے شدہ ہے. البتہ یہ جو فیصلوں کی جو ہارڈ کاپی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہارڈ کاپی، یہ جو فیصلوں کی جو ہارڈ کاپی ہے یہ اس رات ان فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے مطابق وہ نافذ کریں. تو گویا کہ اس رات تنفیذ کا عمل ہوتا ہے، ان احکامات کو نافذ اور لاگو کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری ہارڈ کاپی جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے. لیکن معاملات جو ہے وہ اس سے پہلے لکھے جا چکے ہیں. کون سعید ہے، کون
शकी है, कौन नेकबख्त है, कौन बदबख्त है, किसको कितनी उम्र मिलेगी, कौन कैसे जिंदगी गुजारेगा, रिस्क किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सारी तकवीनी चीजें जो है वो पहले से तय शुदा है, वो इस रात तय नहीं होती। अलबत्ता ये जो कापी है ये हवाले कर दी जाती है उन फरिश्तों की कि जिनको अल्लाह ताला के हुक्म से इसको नाफिज करना होता है। चुनाचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में और दीगर हजरात सहाबा के बारे में ये किताबों में ये दुआ लिखी है कि वो ये इस रात को ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतना सुअदा, अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतना सुअदा फला तमहु, ए अल्लाह अगर आपने अपने नामा आमाल में हमें नेक बख्त लिख दिया है तो आप उसको न मिटाएं, और अगर आपने हमारे नामा आमाल में खुदा न खासा हमें बदबख्त लिख दिया है तो हमें सईद और नेक लोगों में दाखिल फरमा दें, उसको मिटा दें और मिटाने के बाद हमें नेक सादतमंद लोगों की फेहरिस्त में हमें शामिल कर दें, इसलिए कि आपका जो लिखा हुआ है वो उसको कोई नहीं मिटा सकता। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब, ये सब चीजें आप ही के फैसलों से होती हैं। और हजरत हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना हजरत सैयद नफीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े हमारे हजरत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत याफ्ता बुजुर्गों में से गुजरे। हजरत सैयद नफीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस रात की एक दुआ वो जिक्र फरमाई है जिसको दुआए मशाइख के नाम से याद किया जाता है। दुआए मशाइख, उस दुआ का एक खास तरीका है कि मगरिब के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और हर मरतबा सूरह यासीन के बाद फला नियत करनी है और ये दुआ पढ़नी है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरा मामूल है, लेकिन मैं लोगों को बाकायदा नहीं बताता कि ये काम आप करें, वरना कह देंगे कि जी फतवा लगा रहा है। मैं अपने करने में आजाद हूं, मैं अपने करने में आजाद हूं, आपको मैं पाबंद नहीं कर सकता, हां बता सकता हूं। तो हमारे जो जामे मस्जिद गोल मार्केट के बयान जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो बयान है उसमें वो मैं दुआ डाल दूंगा। अब जिसको पढ़ना है, जिसको इसका एतकाद है, जिसको ये यकीन है कि ये दुआ पढ़ लेंगे फायदा होगा तो फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, और जो समझता है कि ये बिदअत है वो उसको न खोले ताकि बिदअत का गुनाह ना मिले। समझ आ गई बात? तो वो दुआ जो है वो हमारे अकाबरीन को, बुजुर्गों का ये मामूल चला आ रहा है कि वो 15वीं शाबान यानी शब बारात की रात को मगरिब के बाद वो दुआ पढ़ते हैं। और बड़ी उस दुआ के आप अगर अल्फाज, उसका तर्जुमा भी मैं जिक्र कर दूंगा, और अगर आप उस दुआ के अल्फाज को और उसके तर्जुमे को आप अगर गौर से पढ़ें, इंसान हैरान हो जाता है कि कैसे अजीब गरीब दुआ मांगी गई है और दुआ सिखलाई गई है और बताई गई है। बहरहाल खुलासा यह है कि इस रात की अहमियत शब कदर जितनी अहमियत नहीं है, लेकिन इस रात की इतनी भी अहमियत नहीं है जितनी आम रातों की होती है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि आम रातों से ज्यादा इसकी अहमियत बढ़ी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुबह सादिक तक के ये ऐलान होता रहता है, ऐलान होता रहता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, हल मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुक़ लह, अला मिन मुब्तलिन फउआफिया, क्या कोई है रिस्क का तंगी का मारा हुआ कि उसकी रिस्क की तंगी को दूर कर दिया जाए? है कोई मुसीबत ज़दा जो किसी मुसीबत में मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला उसको आफियत अता फरमा दे? है कोई परेशान हाल जो हमारे सामने हाथ उठा ले और हाथ फैला ले, उसकी परेशानियों को हम दूर कर दे? ये मुसलसल फरिश्तों की निदा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी इस पुकार पर लब्बैक कहते हैं, और अक्सरियत ऐसी है जो पटाखे छोड़ने में और सूजी का और बेसन का हलवा बनाने में मसरूफ रहती है। उनको यही नहीं पता कि इस रात की अहमियत जो है वो खाने पीने की नहीं है। इस रात ये सारे काम
बहुत सारी रातों में हो सकते हैं। ये जो रात है, इस रात में तो आदमी अल्लाह की इबादत के लिए यकसू हो जाए और अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग कर ले, सारे काम धंधों को छोड़कर। तो बेहतर तरीका वो ये तरीका है कि मगरिब की नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ी जाए। मैं सिंपल सा तरीका मैं आपको बतला रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो आप उस पर अमल कर लें, न समझ में आए आप अपनी मर्जी से करें जैसे कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ लें। अब जी वो सफेद कपड़े पहनने हैं और वो फलां इतर लगानी है और वो फलां टोपी पहननी है, टोपियां पहनते रहे लेकिन टोपी न पहनाएं, मशवरा है, टोपियां पहने जितनी पहननी है, पहना ही नहीं। तो फलां टोपी पहननी है और ये करना है और वो करना है, ये सब बेकार की बात है। ये कोई ईद की रात नहीं है, अगले दिन सुबह ईद नहीं है। हाँ, पाक साफ कपड़े होने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, एक अच्छा माहौल नजर आए। तो मगरिब की नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ ले और मगरिब में जब मस्जिद में दाखिल हो तो नफली एतकाफ की नियत करें, जैसे कि हम हर नमाज में आते वक्त नफली एतकाफ की नियत करते हैं। करते नहीं करते, पीछे वाले नहीं करते, कुछ लोग कर रहे हैं ना, इतने सारे बैठे हुए कोई नहीं हाथ हिला रहा, लेकिन ये अच्छे लोग हैं, झूठ नहीं बोल रहे। तो बहरहाल जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो नफली एतकाफ की नियत करनी चाहिए। चाहे आप अरबी का जुमला कह दें, नवैतुल एतकाफ फिल मस्जिद मादुम तो फिल मस्जिद, या आप उर्दू में कह रहे कि या अल्लाह जब तक कि मैं मस्जिद में रहूं मैं नफली एतकाफ की नियत करता हूं। तो आप बैठे रहेंगे, ना आप कुरान की तिलावत कर रहे, ना आप दुआ में मशगूल है, ना आप जिक्र में मशगूल है, ना आप तस्बीह पढ़ रहे, ना नमाज पढ़ रहे, नफली एतकाफ की नियत से आप मस्जिद में बैठे हुए, लेकिन गपशप नहीं, दुनिया की बातें नहीं, खामोश बैठे हुए, नफली एतकाफ का आपको बैठे बैठाए मुफ्त में सवाब मिल रहा है। तो मगरिब की नमाज में जब आए तो नफली एतकाफ की नियत में, वैसे तो हर नमाज में करनी चाहिए, लेकिन मैं इस रात को खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं। और मगरिब की नमाज सुकून के साथ पढ़े और नमाज के बाद कौन से नवाफिल पढ़ते हैं मगरिब के बाद? अवाबीन, सलातुल अवाबीन। आप अवाबीन की नमाज पढ़े, 2 रकात पढ़ ले, 4 रकात पढ़ ले, 6 रकात पढ़ ले, सुकून के साथ पढ़ ले, एहतमाम से पढ़ ले और उसके बाद जो है वो दुआ में मशगूल हो जाए। हम तो इस वक्त इन हालात में दुआओं के इतने मोहताज हैं, इतने मोहताज हैं, इतने मोहताज हैं कि शायद इससे पहले कभी इतने मोहताज नहीं थे। क्या रहा है? मसाइल, बीमारियां, टेंशन, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के हादसात, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए। हर आदमी मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार है। तो ये आज की रात जो है वो अल्लाह ताला को मनाने का बेहतरीन मौका है, अल्लाह ताला से मांगने का बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। इसको मिस ना करें, इसको कैश करें, इससे फायदा उठाएं। तो आपने ये पढ़ ली, अवाबीन की नमाजें पढ़ ली, आम दिनों में पढ़ते भी होंगे लोग, लेकिन जो हजरात नहीं पढ़ते वो कम से कम इस रात को पढ़ने का एहतमाम कर ले और उसके बाद दुआ करें। बस दुआ जो है वो दुआ पढ़े नहीं, नहीं समझ रहे, दुआ पढ़े नहीं, दुआ अल्लाह खुश रखे, दुआ पढ़े नहीं, दुआ मांगे। फर्क है जमीन और आसमान का। हम दुआ मांगते नहीं है, दुआ पढ़ते हैं। पढ़ रहे कितने सालों से, 40 साल से पढ़ रहे, पढ़ते रहे। दुआ पढ़ना नहीं है, दुआ मांगना है। बहुत बड़ा सवाल का जवाब इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाए ताकि कुरान करीम की उस आयत पर अमल हो जाए, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। जितना जाग कर रात को इबादत कर सकते हैं, पूरी रात कोई जागना फर्ज वाजिब नहीं है, पूरी रात जागना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, जितना आप जाग कर इबादत कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि आज की रात जो है वो गुनाहों से आलूदा न हो। वो होटलों पर बैठकर चाय पीने में वो रात न गुजरे, वो गली के कोनों पर बैठकर लोगों की ग़ीबतें करने में रात न गुजरे, वो मुल्क के हालात हाजरा पर तबसरा करते हुए ये रात न गुजरे।
इधर उधर की, ईरान तुरान की हाँकने में ये बहुत सारे दिन करते रहे। इस रात को कीमती बना लें, इस रात को कीमती बना लें। पता चले कि वाकई आम रातों में और इस रात में आपकी नजर में फर्क है और आप इसकी अहमियत को समझते हैं। तो जितना आप जाकर इबादत कर सकते हैं, जितनी आप इबादत कर सकते हैं, उतनी आप इबादत करें। अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, तौबा करें, माफी मांगे, आंसू बहाएं और अल्लाह ताला को राजी करें। अल्लाह ताला ने तो दरवाजे खोले, थोड़े से चंद आंसू बहा देंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह राजी हो जाएंगे। मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप पूरा समंदर बहा दें, पूरे साल जो आपको रोना है वो पूरा आप आज की रात रो लें, नहीं। जितना रो सकते हैं, जितने आंसू निकाल सकते हैं, उतने आंसू निकालें, बहाएं, अल्लाह को गिड़गिड़ाकर मनाएं, अल्लाह ताला को राजी करें। अल्लाह ताला हमसे सच बात यह है कि रूठे हुए जो मुसलसल हालात और अल्लाह की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी नहीं है। लिहाजा हम गुनाहगारों को चाहिए कि हम अल्लाह को इस रात को राजी कर कर आगे की जिंदगी में अल्लाह ताला को हम अपने साथ ले लें, इस बात का एहतमाम करें। ठीक अल्लाह ताला गुनाहगारों की मगफरत करते हो। मैं आपको पहले शुरू में बता चुका हूं कि कितनी बड़ी तादाद में अल्लाह ताला लोगों की मगफरत करते हैं। हम भी गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला अपनी मगफरत का कोई कतरा, अपनी रहमत की बारिश का कोई कतरा हम पर भी गिर जाए और हमारी भी दुनिया और आखिरत का बेड़ा पार हो जाए, बस जरा सी कोशिश करने की बात है, जरा सी हिम्मत करने की बात है। अपने दीगर मामूलात को छोड़कर यकसुई के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अगर हम कर ले एक रात, तो उम्मीद है कि आगे के मामलात इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसकी तमाम हजरात जो है वो हत्तल मकदूर कोशिश करें और फजर की नमाज भी जो है वो जमात के साथ तकबीर उला के साथ पढ़ें। ये नहीं कि रात भर जाग रहे और फजर की नमाज जो है वो बिस्तर पर नहीं। ईशा की नमाज भी जमात से तकबीर उला से, फजर की नमाज भी जमात के साथ तकबीर उला से, मगरिब की नमाज भी जमात के साथ तकबीर उला से। कितनी ज्यादा आपकी कोई मशगूलियत और मसरूफियत क्यों ना हो, लेकिन तकबीर उला की नमाज जमात न छोड़े। तो अल्लाह ताला इस रात को बहुत बड़ी तादाद में बंदों की मगफरत फरमाते हैं, लेकिन हदीस के मुताबिक इस रात को कुछ ऐसे बदनसीब लोग हैं कि जिनकी इस रात भी मगफरत नहीं होती। अल्लाह ताला से हमें पनाह मांगनी चाहिए। मैं वो लोग आपको बता देता हूं, मैं अपना जायजा ले लूं, अपने गिरबान में मुंह डालूं, आप अपना जायजा लें, कहीं खुदा न खासा इन लोगों में हम शामिल तो नहीं है। और अगर है तो इस रात के आने से पहले पहले मामलात अपने साफ कर लें। मुशरिक की इस रात बख्शिश नहीं होती, कातिल की इस रात बख्शिश नहीं होती, जानी की इस रात बख्शिश नहीं होती, अपनी शलवार और पजामा टखने से नीचे लटकाने वाले की इस रात बख्शिश नहीं होती, दिल में कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं होती। और ये तो मसला हम सबका उमूमी मसला है। अब इसका एक शॉर्टकट निकाला है, अगर आप इजाजत दे तो बता दूं शॉर्टकट निकाला है। हर चीज का शॉर्टकट है ना। कहते हैं कि आज टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, आज मुख्तसर, जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत तीर मार ली है। अब एक मैसेज चलना शुरू हो जाएगा व्हाट्सएप पर कि भाई ये रात जो है वो बड़ी रात आने वाली है और फलाना है और ढिमकाना है और ये है और वो है, और अगर मैंने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है या फलाना हुआ है या मैंने आपके पैसे खाए हैं या मैंने आपके साथ चीटिंग की है या ये है या वो है, फलाना फलाना सारी चीजें कर कर बस इस रात के आने से पहले पहले मुझे माफ कर दें। क्या ख्याल है आपका? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, फिर आप मेरे से नाराज हो जाएंगे। क्या ख्याल है, काफी है ये मैसेज? नहीं बता रहे, मैसेज काफी नहीं है। क्या करना चाहिए भाई? जाएं, उसकी मिन्नत समाजत करें, उसके हाथ पांव पकड़े, पैसे अगर खाए हुए किसी के 2 नंबर तरीके से उससे माफी मांगे या उसको अदा करने की फिक्र करें। सिर्फ मैसेज चला रहे और दिल में कीना भरा हुआ है। हम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे, अल्लाह ताला को धोखा दे रहे। दिल में हसद भरा हुआ है, दिल में कीना भरा हुआ है, दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है। और मैसेज क्या है? मैसेज भी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। एक मैसेज टाइप किया और टाइप कर कर उसको ग्रुप में डाला और यहां से बटन दबाया
खलास। हाँ, जब आप किसी के पास जाएंगे, उसकी मिन्नत समाजत करेंगे और उससे माफी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, तो फिर ये और बात है। सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देना और मैसेज आगे ग्रुपों में भेज देना, ये इस शैतानी चक्कर में ना पड़े, इसमें वक्त जाया ना करे अपना। इसलिए बेहतर बात यह कि अपने दिलों को दूसरे मुसलमानों के बारे में जो कीना और हसद है, अपने दिलों को साफ कर ले, जिससे जो कुछ हो गया अल्लाह के लिए माफ कर दे, अल्लाह के लिए माफ कर दे। अल्लाह ताला जो है वो माफी को बहुत पसंद करते हैं। दिल में कीना रखने वाले की भी इस रात बख्शिश नहीं होती। शब कदर में भी ये आदमी अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत से महरूम रहता है। 2 दिन की जिंदगी, क्या कीना और क्या बोझ दिल में भरकर जिंदगी गुजार रहे हो। छोड़ो इन चीजों को, थोड़ी सी जिंदगी बाकी, इसको कीमती बना लो और अल्लाह की मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बन जाओ। तो इसलिए बहुत ताकीद के साथ मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि दिल में जिसके खिलाफ भी कीना और बुग़्ज़ भरा हुआ है, अपने दिलों को खुदा के लिए साफ कर ले और माफी तलाफी कर ले इस रात के आने से पहले पहले, ताकि इस रात का जो सही फायदा उठाना, इस रात से सही जो फायदा उठाना चाहिए वो फायदा आप उठा सकें। तो फिर क्या ख्याल है, तवक्को रखी जाए, तवक्को रखी जाए। मैं भी देखता हूं मुझसे कौन कौन मिलता है, बंदों को तो मैं पहचानता हूं। हाँ, आप ये ना समझे, बंदों को मैं पहचानता हूं, मैं भी देखता हूं मेरे पास कौन आता है। और भाई मेरी तरफ से सबके लिए भाई माफी है, खुले आम माफी है। आपने गीबत की है मेरी, आपने मेरी बुराई की है, आपने इल्जामात लगाए, आपने गलत चीजों की मेरी तरफ निस्बत की है। ऊपर अल्लाह है, नीचे आप है, मेरी तरफ से सबको माफ है। ठीक है जी, मैंने तो अपना फरीजा अंजाम दे दिया, अब आपका मसला है। तो इस रात से पहले पहले अपने दिल को कल्बे सलीम बनाएं, साफ सुथरा आईने की तरह साफ शफाफ दिलो, उसमें जर्रा बराबर भी कोई लकीर ना हो, कोई शगाफ ना हो। तो फिर इस रात से इंशाअल्लाह हम सही तरीके से फायदा उठाने वाले होंगे। अब वक्त कम है, मैं 2-3 बातें करके जल्दी से खत्म कर रहा हूं। बाकी इस रात में सलातुत तस्बीह की जहां जहां जमात होती है, बहुत सारी जगहों पर सलातुत तस्बीह की बाकायदा जमातें होती हैं और लोगों में वो पर्चे तकसीम होते हैं। वो आप देखेंगे उस दिन रात को लोग कार्ड हाथ में लिए हुए होंगे और कोई कुछ पढ़ रहा होगा मोबाइल पर, कोई कुछ पढ़ रहा होगा कि जी इस रात में फला फला जो है वो इतनी नफलें पढ़ी जाए और उससे पहली रकात में ये सूरतें पढ़ी जाए, दूसरी रकात में ये सूरतें पढ़ी जाए और इस तरह खड़ा हुआ जाए और इस तरीके से बैठा जाए। क्या वाहियात बातें सारी, कुछ नहीं है। शरीयत ने हमें किसी खास नमाज पढ़ने की, कोई खास तरीके के साथ नमाज पढ़ने की कोई शरीयत ने हमें तलकीन नहीं फरमाई। सिंपल सी नमाज है जो आम दिनों में पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से हम नमाजें पढ़ लें। फलां सूरत पढ़ना है, फिर फलां सूरत पढ़नी है, फिर यूं पढ़ना है, फिर यूं पढ़ना है, सब खुराफात और बिदआत है। इन चक्करों में अपने वक्त को जाए न करें, वो काम करें जो काम शरीयत से साबित है, बस। बाकी अपना वक्त जाया करना है, एक बात। दूसरा मसला जो है वो कब्रिस्तान जाने का है। अब कब्रिस्तान जाने वाला मसला ये तो कम से कम अच्छी तरह समझ लें। देखिए, कब्रिस्तान जाने का मसला ये कि इस रात, कौन सी रात, सब बोल दें, शब बारात वाली रात, पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में इस रात को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाना एक मरतबा साबित है। अब अगर कोई आदमी एक मरतबा भी इस रात को नहीं गया तो वो सुन्नत पर अमल करने की नीयत से एक जिंदगी में एक रात को चला जाए इस तारीख को। लेकिन हर आने वाली शब बारात को कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करना, हर आने वाली रात को, भाई जिनके लिए आप जा रहे हैं क्या उनको जरूरत रोजाना आपके तोहफों की नहीं है? नहीं बता रहे। आप जो हदिया भेज रहे हैं अपने मुर्दों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, उनको जरूरत सिर्फ 15वीं शाबान की रात की, शब बारात की रात में जरूरत है, या रोजाना जरूरत है? रोजाना जरूरत है। तो आप रोजाना इशारे सवाब करें, आप रोजाना कब्रिस्तान जाए, कौन आपको मना करता है, कौन रोकता है? लेकिन किसी एक खास रात का इल्तिजाम कर लेना और उसका एहतमाम कर लेना, यह शरीयत की रूह के मुनाफी है। यहां बैठकर आप कर ले जो कर रहे हैं, इसाले सवाब कर रहे हैं,
इसाले सवाब कर दे। अल्लाह ताला जिस तरह आम दिनों में पहुंचाते हैं इसी तरीके से इस रात में भी पहुंचाते हैं। हुजूर से जो बात साबित है वो मैंने आपको बता दिया कि पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में एक मौके पर साबित है कि आप इस रात को कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, जन्नतुल बकी। तो बहरहाल एक तो मसला ये, मैंने मसले की वजाहत कर दी, अब आपकी का जैसे दिल चाहे आप उस तरीके से कर लें। अगले दिन का मसला है रोजा रखने का मसला, वो भी मैं जिक्र कर दूं, वक्त पूरा हो चुका है। अगले दिन का रोजे का मसला यह है कि रोजा ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये एक नफली रोजा है। अब अगर कोई किसी आदमी की आदत जो है वो हर महीने अय्याम 20 के रोजे की है, अय्याम 20 समझ रहे हैं ना क्या, हर महीने की 13, 14, 15 तारीखें, 13, 14, 15 तारीखें, एक आदमी का हर महीने इस्लामी महीने के इन तारीखों में रोजा रखने का मामूल है। वो 13 को भी रखता है, 14 को भी रखता है, तो 15वीं शब आ रही है, 15वीं तारीख भी आ रही है, लिहाजा अगर वो रख ले तो इंशाल्लाह इस पर भी सवाब मिल जाएगा। और अगर किसी को ज्यादा रखने का शौक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना रखें, अगर किसी को रखने का शौक है तो मेरी छोटी सी राय यह है कि कम से कम 13, 14, 15 तीनों दिन का रोजा रख लें। 13, 14, 15 तीनों दिन का आप रोजा रख लें तो इंशाल्लाह अय्याम 20 के रोजों का भी आपको सवाब मिल जाएगा। और इसको मामूली बनाना चाहिए हर महीने का। बाकी इसके अलावा जो बातें, जो चीजें हैं, सब बातें वो हैं कि जिसका शरीयत से हलवे, मांडा और कौन सा हलवा बनाया जाए और कौन से घी में बनाया जाए और कौन सा ड्राई फ्रूट डाला जाए, इन चक्करों में न मैं अपना वक्त जाया करना चाहता हूं, न मैं आपका वक्त जाया करना चाहता हूं। इसलिए इन चीजों से बच जाएं और अपने वक्त को कीमती बना लें। देखिए शैतान जो है ना वो बड़ा शैतान है। शैतान जो है, आखिरी बात कर बात खत्म कर रहा हूं, शैतान जो है वो बड़ा शैतान है। उसने ये सोचा कि इस रात को कबीले बनु कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं, इतनी ज्यादा तादाद में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, तो उसने सोचा चलो इनको किसी चक्कर में लगा दो, इनको किसी चक्कर में लगा दो। तो किस चक्कर में लगा दिया नहीं बता रहे, हलवे मांडे के चक्कर में लगा दिए, चलो अब तुम ये पकाते रहो। अब वो पका रहे हैं, उसके बाद खा रहे हैं, उसके बाद महफिल जमी हुई है। वो पूरा वक्त जो इबादत के लिए था, वो पूरा वक्त जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का था, वो पूरा वक्त जो अल्लाह के सामने माफी मांगने का था, वो पूरा वक्त जो अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करने का था, वो वक्त किसके नजर हो गया नहीं बता रहे। आप नहीं बता रहे तो मैं भी बस बात खत्म कर रहा हूं। वो हलवे के चक्कर में, हलवा पकाने के चक्कर में, हलवा बांटने के चक्कर में, इधर उधर। इसलिए मैं फिर दोबारा आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि इस रात को अपना वक्त जाया होने से बचाइए। जितना काम आप कर सकते हैं अपने हिस्से का, कम से कम वो काम आप करें। और हर तरह की बिदआत से, खुराफात से, हर तरह के मुनकरात से, हर तरह के गुनाहों से, मासियतों से हम बचें। अल्लाह ताला मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। और जो बातें मैंने अर्ज की है, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।